आप लोग को शॉर्ट नोट आता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी पे, ठीक है। So this is the complete urinary tract and these are the various levels where the obstruction can occur. ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। Now the end result is hydronephrosis. What exactly is hydronephrosis? It is the term used to describe dilatation of the renal pelvis due to back pressure changes. जो uppermost portion होता है ureter का, it gets dilated. It is associated with progressive, if it is chronic na, it can lead to progressive loss of renal parenchyma leading to renal atrophy, ठीक है। Now there are two pictures. On the left hand side, this is the normal kidney. In the normal kidney you can clearly, this is the cut surface of kidney parenchyma, you can clearly identify the cortex and the medulla. Second, the calyceal system is there, the minor calyces and then the major calyces. Just compare this with the hydronephrotic kidney. There is kidney stone at the pelvis, दिख रहा है? There is kidney stone at the pelvis leading to back pressure changes. There is dilatation of this pelvic calyceal system and there is loss of corticomedullary junction. मतलब this is not true कि होगा ही होगा, it depends upon कि कितने टाइम से ब्लॉकेज है, ठीक है। But there is always dilatation of the renal pelvic calyceal system. Now this is again the cut surface, cut section of the gross specimen of kidney. ये दिख रहा है आपको? This is the dilated pelvic calyceal system. Now the most common cause which we encounter in routine practice is urolithiasis. What is urolithiasis? No talking. What is urolithiasis? Renal stones or renal calculi. They can form at any level of the urinary tract, but most commonly they arise in the renal parenchyma. ठीक है? Most commonly seen in males. The common age group is 20 to 30 years, and there are some familial predispositions and hereditary predispositions for stone formation. Now there are many inborn errors also. This list you have to cram. ठीक है? These are all inborn errors of metabolism which are associated with stone formation. Like most commonly gout हो गया, gouty arthritis is very common, cystinuria हो गया, ठीक है। Then primary hyperoxaluria. All these are the hereditary diseases which are associated with stone formation. Now what are types of stones? There are 4 different types of stones. Most common ones are the calcium stones which you see in 70% of the cases, ठीक है। They are composed of calcium oxalate और calcium मिक्स्ड विथ कैल्शियम फॉस्फेट। या तो प्योर ऑक्सिलेट स्टोन्स होंगे या फिर मिक्सचर होगा ऑक्सिलेट एंड फॉस्फेट का, ठीक है। दे आर द कॉमन स्टोन्स विच यू एनकाउंटर। तो कभी भी रीनल स्टोन्स होते हैं, कॉमन वंस आर द कैल्शियम, ठीक है। सेकेंड जो 15% केसेस में मिलते हैं, दे आर द ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स, ऑल्सो नोन एज ट्रू वाइट स्टोन्स, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट. Then in 5 to 10% cases there are uric acid stones. After that very rarely you can encounter cystine stones. अगर cystine stones अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो हिस्ट्री भी रहेगी, उसको हेरिडिटरी केसेस की हिस्ट्री रहेगी. नाउ व्हाट इज द पैथोजेनेसिस बिहाइंड स्टोन फॉर्मेशन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज इन इंक्रीज यूरिनरी कंसेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द स्टोन कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इट एक्सीड्स देयर सॉल्युबिलिटी. इसलिए जब छोटे स्टोन्स होते हैं तो क्या एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स? एग्जैक्टली, ठीक है, ड्रिंक मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, सो दैट द स्टोन कैन पास थ्रू द नॉर्मल रूट. ओके, so whenever there is loss of fluid or there is increased urinary concentration, that is the important factor behind stone formation. उसके बाद the second thing is urinary volume ही कम हो गया, ठीक है, टोटल बॉडी में हाइपोवोलीमिया है, so that urinary flow जो जा रहा है वो कम है. That is a secondary risk factor. Now these are the different locations depicting the stones. ऊपर आपका कैलिशियल स्टोन दिख रहा है, ठीक है, इन दी रीनल कैलिशियल सिस्टम. देन आपका यहाँ पर रीनल पेल्विक स्टोन है,
Renal pelvic stone is in the uppermost portion of the ureter. Then there is upper ureteral stone. ठीक है, जहां भी कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगी, जहां भी कर्व आएगा यूरिनरी ट्रैक्ट में, वहां पे ज्यादा चांसेस होंगी स्टोन इम्पैक्शन के. नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स. दीज आर द कैल्शियम स्टोन्स सीन इन 70% ऑफ केसेस. इसका सरफेस स्मूथ रहता है. ठीक है. देन देर आर ट्रू वाइट स्टोन्स सीन इन 10 to 15% ऑफ केसेस. ट्रू वाइट स्टोन्स आर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स. ओके. देन इन 5 to 10% केसेस देर आर यूरिक एसिड स्टोन्स. देन इन 1 to 2% केसेस देर आर सिस्टीन स्टोन्स. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कौन से स्टोन्स में हेमेचूरिया के चांसेस होंगे. एनीबडी एनीबडी हेमेचूरिया कौन से स्टोन्स करेंगे? सारे बोल दो, है ना. कोई एक बताओ जो भी कॉन्फिडेंट है. नेक्स्ट टाइम मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए कि कौन से स्टोन्स हेमेचूरिया करेंगे. दिस इज योर प्री पीजी लेवल क्वेश्चन. ठीक है, हेमेचूरिया कौन से स्टोन्स में होगा. नाउ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट फॉर स्टोन्स क्या रहेगा. देर विल बी सीवियर फ्लैंक पेन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है एसोसिएटेड विद नोजिया एंड वॉमिटिंग. एक्यूट इमरजेंसी रहेगी. फटीग, एलिवेटेड टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम रहेगी. देन पेन ऑन यूरिनेशन. ठीक है. यू कैन गेट पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन. अब ये कौन से स्टोन्स में होता है ये आप लोग बताओगे. ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया इन ऑब्स्ट्रक्शन, एन्यूरिया इन लेटर स्टेजेस. ठीक है. Then there can be renal colic and hydronephrosis. So these are the various clinical manifestations. Now this is the gross cut surface of kidney. You can see concretions in the renal parenchyma. ठीक है. Any confusion? Now we are starting with tumors of kidney. ठीक है. After the stones, the second cause for obstruction is tumors of kidney. Again the tumors are divided into benign ones and the malignant ones. ठीक है. benign ones post class. ठीक है. benign ones and malignant ones. In benign ones there are three entities. First is renal papillary adenoma, second is angiomyolipoma and third is oncocytoma. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. प्रैक्टिकल में आप लोग को भी क्लियर सेल आरसीसी की स्लाइड दिखाई थी हम लोगों ने. ठीक है. malignant ones you have renal cell carcinoma which is seen in adults. ठीक है. so there are 4 type of renal cell carcinoma. One is clear cell, second is papillary, third is chromophobe and last one is collecting duct. So RCC is seen in adults whereas Wilms tumor is seen in children. ठीक है. Wilms tumor का दूसरा नाम क्या होता है. एनीबडी पता है किसी को? चलो ये भी पढ़ना जाके. ठीक है. नाउ दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू. ये इंपॉर्टेंट है. किडनी के आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या रहता है. कैप्सूल. नो टॉकिंग. रीनल कैप्सूल. ठीक है. द fibrous covering, the thick covering which covers the kidney is the renal capsule. ठीक है. Then the parenchyma is formed of cortex and medulla. ठीक है. In the medulla there are medullary pyramids. ठीक है, known as renal pyramid. उसके बाद क्या रहता है. रीनल कैप्सूल समझ में आया. उसके बाद आएगा हमारा पेरीनेफ्रिक फैट known as पेरीरेनल फैट. देन रीनल फेशिया. दीज आर द 3 कवरिंग. किडनी के सरफेस पे जो कवरिंग रहती है ये ऑर्डर रहेगा. कैप्सूल, फैट एंड देन फेशिया. ठीक है. अंदर का तो आपको पता ही है फिर कट सरफेस में क्या रहता है. नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर ट्यूमर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टबैको स्मोकिंग. ठीक है. टबैको रिजल्ट्स इन 2-fold increase risk. ठीक है. Then there are some environmental conditions. Then occupational hazards are there. Most commonly seen in leather tanners and asbestos workers. ठीक है. These are the occupational hazards. Then hormonal में DEC होता है कि ये याद रख लो. डाईइथाइल सिलबेस्टेरॉल. ठीक है. DES. Then there is obesity and hypertension. These are the risk factors for renal tumors.
नाउ this is just the interpretation that RCC renal cell carcinoma, it's not just a disease, it's a whole spectrum of disease. ठीक है, renal cell carcinoma भी कई तरीके का होता है. क्यों बताते हैं हम? Why it is important? ये बताना क्यों जरूरी है? बस हमने ये बता दिया that this is kidney tumor, then why to सब टाइप इट कि क्लियर सेल कार्सिनोमा है, क्रोमोफोबिया, पेपिलरी है. एनीबडी? बिकॉज सम हैज गुड प्रोग्नोसिस एंड सम हैज पुअर प्रोग्नोसिस. ठीक है, and these tumors are associated with different mutations. Like clear cell is associated with VHL mutations. ठीक है, papillary type is associated with CMET. Then there are some cancer syndromes which are associated with renal cell carcinoma. The important one is VHL. ठीक है, VHL के अंदर क्या होता है हमारा? वन इज क्लियर सेल कार्सिनोमा तो रहेंगे ही, इसके अलावा देर आर सिम्टम्स इन दी CNS. ठीक है, हेमेंजियोब्लास्टोमास हो सकते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है आपका. ठीक है, पैंक्रियाटिक सिस्ट बन सकते हैं इसके अंदर. देन ओवेरियन ट्यूमर्स. So VHL. Is there any syndrome associated with RCC? Then you will have to say one syndrome is there associated with VHL gene. Now this is the gross picture of cut surface of kidney showing renal cell carcinoma. वो दिख रहा है ऊपर surface पे? There is this grey white area. ठीक है, तो renal cell carcinoma has got variegated appearance. By variegated, what do I imply? It can show hemorrhage, it can show necrosis. ठीक है, it can show cystic change, it can show solid areas, grey white areas. ठीक है. Now this is the microscopic picture of clear cell carcinoma. ये प्रैक्टिकल में दिखाई थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. क्लियर सेल्स क्यों होते हैं ये? एनीबडी? सेल्स क्लियर क्यों होते हैं? ड्यू टू हु सेड ग्लाइकोजन? Yes, it is due to glycogen. ठीक है, so there are two important factors. One, the cells are clear. As the name indicates, clear cell carcinoma में सेल क्लियर रहेंगे, लेकिन वो क्लियरिंग क्यों होती है? That is due to glycogen. ठीक है, ये फैटी चेंज नहीं है. इसके अलावा जो वेसल्स रहेंगे, they will show thin septae will be there and the vessels will show chicken wire appearance. ठीक है. Now this is papillary carcinoma. Can you see there are different papillae? Papillae are present. Papillae are having fibrovascular pores. ठीक है, so this is papillary cell carcinoma. आपको हम clear cell carcinoma की स्लाइड ही दिखाते हैं. Then this is chromophobe cell type. In chromophobe ना तो इसके अंदर clear cell है, ना ही ये papillary है. यहाँ पे आपको ये सब ट्यूमर सेल्स दिख रहे हैं. इम्पॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस के आसपास अगर आप देखोगे देयर इज क्लियरिंग. दिख रही है? न्यूक्लियर के आसपास क्लियरिंग दिखती है, उसको हम बोलते हैं कोइलोसाइट लाइक चेंज. ठीक है. नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स फॉर रीनल सेल कार्सिनोमा? देयर इज अ ट्रायड ऑफ हेमेचूरिया, लंप एंड कॉस्टोवर्टिब्रल पेन. ठीक है, कॉस्टोवर्टिब्रल पेन होता है पेन एट द रीनल एंगल. ये आप व्हेन यू गो फॉर योर सर्जरी पोस्टिंग्स वहां पे भी यही चीज पढ़ाई जाएगी. तो ट्रायड होता है हेमेचूरिया का, लंप का एंड कॉस्टोवर्टिब्रल पेन का. मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल दीज इज हेमेचूरिया. अगर किस नॉर्मली तो ब्लड नहीं आएगा ना यूरिन में, अगर हेमेचूरिया आ रहा है, ओल्ड एज है, रिस्क फैक्टर्स हैं, देन इट शुड ऑलवेज रेज सस्पिशन फॉर मैलिग्नेंसी. ठीक है, बट हेमेचूरिया इज यूजुअली इंटरमिटेंट एंड मे बी माइक्रोस्कोपिक. जरूरी नहीं है कि ग्रॉस हेमेचूरिया हो, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है. ठीक है, कौन सा टेस्ट लगाते हैं हम? एनीवन कौन सा टेस्ट लगाते हैं यूरिन में? बेंजिडीन. ठीक है, एंड कोई भी मैलिग्नेंसी होती है, इट इज एसोसिएटेड विद सम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स? वेट लॉस रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी. ठीक है, पेशेंट ऑलवेज कंप्लेन की वजन कम हो गया है. ठीक है, भूख नहीं लग रही है. दीज आर द फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज यूरोथीलियल ट्यूमर्स. ये तो किडनी ट्यूमर्स हमने पढ़ ली, अब है यूरोथीलियल ट्यूमर्स. ठीक है, तो यूरोथीलियल ट्यूमर्स अकर्स एट पेल्विस में हो सकता है, यूरेटर में हो सकते हैं एंड ब्लैडर में हो सकते हैं. ठीक है,
In 50% of the renal pelvic tumors, there is pre-existing or concomitant bladder urothelial tumor. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरेटर में ट्यूमर है, ब्लैडर इज ओके, ठीक है. यूजुअली इन क्लिनिकल सिनेरियो, अगर यूरेटर में ट्यूमर है या पेल्विस में ट्यूमर है, देन ब्लैडर में भी होता ही है, ठीक है. प्योर यूरेटरल मेलिग्नेंसीज आर रेयर टू फाइंड, ठीक है. माइक्रोस्कोपिकली व्हाट विल यू सी? ऑल द फीचर्स ऑफ एनाप्लेजिया. देर आर फोकस ऑफ एटिपिया और कार्सिनोमा, ठीक है. नाउ मोस्ट कॉमन सिम्टम इज अगेन पेनलेस हेमेचूरिया, ठीक है, इज द डोमिनेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन ऑल ऑफ दीज ट्यूमर्स एंड अगेन मोर कॉमन इन मेल. 50 to 70 वो था हमारा 20 to 30 एज ग्रुप में, ये थोड़ा ओल्डर एज में होता है, ठीक है. 50 to 70. नाउ ऑल्दो मोस्ट अकरेंट पर्सन विद, इसके अंदर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, बट एक ही चीज है इसके अंदर, एक्सपोजर टू बीटा नेफ्थाइलमीन. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर जो एराइलमीन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनमें दिस इज मोर कॉमन, ठीक है. सो दिस इज सीन इन ओल्डर एज ग्रुप एंड मोस्ट कॉमनली कोई हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर इसमें नहीं है, बट एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड ऑल्सो वन इन्फेक्शन शिस्टोसोमियासिस, ठीक है. एंड सर्टेन ड्रग्स, साइक्लोफॉस्फोमाइड कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग होता है ये, साइक्लोफॉस्फोमाइड देते हैं तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस होती है, ठीक है. नाउ कैन यू सी दैट इज पैपिलोमा. तो पहले आपका एपिथेलियल है, उसके नीचे आपका सब एपिथेलियल टिश्यू है. तो फर्स्ट इज योर पैपिलोमा, देन दैट इज इन्वेजिव पैपिलरी, डीप चला गया. पैपिलोमा तो है ही, बट द ट्यूमर इज ग्रोइंग डीप ऑल्सो, दैट इज वाई इन्वेजिव पैपिलरी कार्सिनोमा. Here this is flat and non-invasive, not going deep, just present till the epithelium, and that is flat invasive. Flat है but that is invasive also. Any confusion? Now at the pelvis, can you see this growth? ये कट सरफेस है किडनी का, these are the dilated pelvic ileal system और ये सेंटर पे ग्रोथ है, ठीक है. तो दोनों में डिफरेंस है. किडनी ट्यूमर्स आर प्रेजेंट इन दी पेरेन्काइम ऑफ किडनी, वेयर एज यूरोथेलियल ट्यूमर्स आर प्रेजेंट इन दी पेल्विस, ठीक है. नाउ ये उसी का ही माइक्रोस्कोपिक डिपिक्शन है. ये कौन सा एपिथेलियम है? एनीबडी? कौन सी एपिथेलियम है ये? दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम और द यूरोथेलियम. नॉर्मली कितने लेयर्स होती है? एनीवन? तो दिस इज द यूरोथेलियम, ठीक है, शोइंग. इसके अंदर कैन यू सी जो सेल्स हैं दे आर शोइंग हाइपरक्रोमेसिया, ठीक है. दे आर मोर अपियरिंग मोर डार्कर, दैट इज बिकमिंग हाइपरक्रोमेटिक. प्लस न्यूक्लियस का साइज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स हाई एनसी रेशो है. एंड देयर इज लॉस ऑफ पोलैरिटी. यूजुअली तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होना चाहिए, बट ये अवे फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दैट इज लॉस ऑफ पोलैरिटी, ठीक है. एनी कंफ्यूजन? Okay. So we are done with your kidney disorders. Any doubts you can ask.